what has been given to you that we need to understand first. So the question, what does the question say? Question says ki a man is there who has sold two types of dogs for rupees 3605 each. What does it mean? It means that the selling price of the two dogs what he was having, he has sold them for rupees 3605 each of them. Now the second statement is given that on one he made a gain of 15%. Okay, so one he has sold at a profit of 15%, whereas on the other he has beared a loss of 9%. So second dog he has sold at a loss of 9%. Now a question says that find his overall gain or loss. So what is the total gain or loss? Now how you define gain or loss? So as Mahesh has just now told that profit is equals to SP minus CP. Profit is selling price minus cost price. It means that my selling price should be greater than the cost price. Then only I will be having the profit. And secondly, loss is equals to cost price minus the selling price. So when cost price is more than the selling price, then I will be bearing a loss. So in this case, what is given to us? Selling price of one dog is equals to rupees 3605. So SP for two dogs will be 05 into 2, which will be equal to rupees 7210. Okay, I hope it must be clear till now, whatever I have told you. Now you are having the selling price for both of these two dogs. What you need to find? You need to find the cost price for both of these, considering कितना गेन हमें हो रहा है एक डॉग पर, कितना लॉस हो रहा है. So आप लोगों को पता है the formula for calculating the cost price when selling price is given and the gain percentage or the loss percentage is given. So if when gain percentage is given 100 multiplied by the selling price divided by 100 plus the gain or profit percent, whatever you mention. So now by this, if you calculate what you will get for first, now we are calculating for the dog which has been sold at a gain of 15%. So cost price will be, I'm just mentioning 100 multiplied by 3605, then divide by 100 plus 50. Now, when you will solve this, it will come out to be around 31,334.8 rupees. This will be like this. So, cost price of one dog. This is of the dog which has been sold at a profit percent. Okay. Now, if we find the cost price of the dog which has been sold at loss of 9%. इसमें in this case you need to apply the formula of cost price is equals to 100 into the selling price divided by 100 minus loss percent, and that's it. So if you do like this, what you will get 100 multiplied by 3605 divided by 100 minus 9. So on doing this calculation, you will get the cost price around rupees 3961.5.
So you will get the cost when you do this calculation, you will get the cost price of this much. Now we need to find out that what is the overall gain or loss percentage. So now moving ahead, अब जो क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज. देखो अभी हमने पहले भी जस्ट बात करी है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो अभी हमारी जो जो पहले हमने देखा था, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ रखी है, सेलिंग प्राइस इज ₹7210, दोनों की मिला के, एक की नहीं दोनों की मिला के. ठीक है. नाउ अगर मेरे को दोनों की कॉस्ट प्राइस देखनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ both the dogs, this will be equal to how much? This will be equal to whatever we have calculated, that is एक की हमारी आई थी, इट वाज सॉरी हाँ इट वाज अराउंड 3134.8 प्लस रुपीस, second one was 3961,961.5. ये हमारी जो वैल्यू आती है, इसे अगर हम सम करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 7096.3. अब आप देख लो, ये कॉस्ट प्राइस मेरी आ रही है दोनों की मिला के 7096.3, और जो हमारी सेलिंग प्राइस थी दोनों की मिला के इट वाज 7210. यहां पेस्ट कर देता हूं इसे. So now selling price is 7210, cost price is 7096. So selling price is obviously greater than the cost price, 7210 और 7096. Therefore it implies that it will be a profit thing. कि हमें profit हो रहा है, इसमें gain हो रहा है, not a loss. So profit will be SP minus the CP, which will be equal to 7210 minus 7096.3, and that if you calculate it will be around 113.6 or 7, 113.7. So this is your final answer. Second question आपके सामने, I think you must be able to seeing this on your screen. देखो सबसे पहले तो हमें ना इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, what is given in this question is कि there is a jeweler who allows a discount of 16% to his customers. Whatever he is selling at a discount of 16%. Even after giving the discount, he gains 20%. Okay, so the question asked is find the marked price of a ring which cost the jeweler rupees 1190. So what is asked is कि उस रिंग की मार्क्ड प्राइस कितनी है अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 1190 रुपए होती है. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको ना बेसिक्स ऑफ ये हमारा कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और ये थोड़ा सा बता देता हूँ. देखो किसी भी चीज की अगर हम उस पे शॉप पे जाते हैं किसी उस पे, तो हमारी तीन चीजें ही है मेनली, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस का मैंने आपको पहले भी बताया है ये वाली चीज कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस एक्चुअली वो प्राइस होती है जिसमें वो सामान बनता है, जो भी कोई सामान है. अगर इस केस में हम बात करें तो द रिंग इज इन द क्वेश्चन, सो द प्राइस ऑफ द रिंग, हमने कितना पैसा खर्च किया उस रिंग को बनाने में, दैट इज द कॉस्ट प्राइस, जो हमारी कॉस्ट प्राइस. ठीक है. अब ये जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो सेलर है, जो इस केस में अगर हम देखें तो ज्वेलर है, अगर उसने उस रिंग का कितना प्राइस लिखा हुआ है. आप लोग मार्केट में जाते हो तो जैसे शर्ट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो उस पर टैग होता है ना एक, दैट टैग इज देयर, उस टैग पे कुछ प्राइस लिखी होती है, दैट प्राइस इज कॉल्ड एज द मार्क प्राइस, जो एमआरपी जो लिखी होती है. ठीक है. तो अब होता क्या है कि इस एमआरपी के बाद अगर हम कुछ डिस्काउंट लगा देते हैं इस पे, यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्काउंट.
डिस्काउंट लगा देंगे तो जो कस्टमर जितना पे करेगा टू दी ज्वेलर, दैट विल बी दी सेलिंग प्राइस ऑफ दैट रिंग। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव बीन गिवन, हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है 1190 रुपीज। ठीक है, अब इसमें कहा है कि ज्वेलर जो है कितना डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है वो 16%। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं 16%। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, जो प्राइस जो टैग पे लगी होती है उस प्राइस पे डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट गेन इज 20%। गेन किस किस के बीच में होता है, गेन होता है हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में। अगर मैं थोड़ा सा जस्ट आप लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट यू ऑल बिकम क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। गेन कह रहा है वो 20%। ये हमें निकालना है। अब थोड़ा सा ना इस चीज को एक बार और फिर से समझते हैं कि सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस होती क्या है। देखो, जो फर्स्ट जो सर्कल बनाया है मैंने, कॉस्ट प्राइस, आई एम अगेन सेइंग कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस चीज की वो एक्चुअल बनाने में उस चीज को कितना खर्चा हुआ है। तो इस रिंग को बनाने में 1190 रुपए खर्च हुए थे। सेकंड इज मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होती है जो कि एक, जैसे इस केस में ज्वेलर है या जो भी कुछ सेलर बंदा है जो बेच रहा है जो सामान, उसने उस प्राइस की कीमत कितनी रखी हुई है, टैग पे कितनी प्राइस लिखी हुई है, एमआरपी कितनी लिखी हुई है, दैट इज द मार्क प्राइस। इस मार्क प्राइस पे अगर कोई डिस्काउंट देता है, तो जैसे इसमें डिस्काउंट 16% दिया हुआ है, तो डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस आती है, जो कि कोई कस्टमर खरीदता है जितने पैसे में, उसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। तो अगर हम देखें एक तरीके से ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कस्टमर को, ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही पता चलेगा। एक तरफ मेरी कॉस्ट प्राइस है, एक तरफ सेलिंग प्राइस है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है गेन इज 20%। अब आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 1190 रुपए दिया हुआ है, गेन 20% दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस और अगर गेन हमारे पास है तो हम क्या सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते उस चीज की। तो अगर अब मेरे को एसपी निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो सेलिंग, मेरे पास कॉस्ट प्राइस 1190 रुपीज है, गेन परसेंट 20% दिया हुआ है। तो एक बार कैलकुलेट करके निकालिए कितनी वैल्यू आती है इसकी, सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आएगी। दिस विल कम आउट टू बी अराउंड ₹1428। तो सेलिंग प्राइस मेरी कितने आई, ₹1428। ठीक है, तो अब अगर मैं इस जो हमने डायग्राम बनाया हुआ था, मैं अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस रख दूं, ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई है, 1428। तो अब आप देखो कि सेलिंग प्राइस मेरी 1428 रुपीज आ चुकी है। मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। मार्क्ड प्राइस और उस पे डिस्काउंट कितना बताया हुआ है, 16%। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मार्क्ड प्राइस पे 16% डिस्काउंट देता है ज्वेलर। तो अब आप एक चीज, सिंपल सी बिल्कुल चीज है कि किसी भी चीज का अगर हमें मार्क प्राइस अगर दी होती, मान लेते हैं कि मार्क प्राइस अगर ₹X है, लेट
मार्क प्राइस इज रुपीज एक्स। तो इस केस में अगर हम देखें तो एसपी मेरी कितनी होगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एसपी होगी। सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगी, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हो रहा है, तो मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट घटा देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमने क्या माना है, एक्स, तो एक्स माइनस डिस्काउंट कितना है 16%। अब ये डिस्काउंट किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है, तो इट विल बी 16% ऑफ मार्क प्राइस। मतलब क्या, हमने एक्स लिया हुआ है मार्क प्राइस को, विल बी इक्वल टू एसपी। एसपी हमने कितनी निकाली है 1428। तो अगर हम इससे देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 16/100 इंटू एक्स, दैट विल बी 0.16 एक्स इक्वल टू 1428। इसे आप सॉल्व करो, इसमें आप अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू, तो x इक्वल टू आएगा आपका रुपीज 1700। आज का ये थर्ड क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करिए फिर सभी लोग। चलिए अब मैं जरा इस सवाल का बता देता हूँ, समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कि क्या मतलब है, कैसे है। ठीक है, अब देखो अगेन हम थोड़ा सा वही कंसेप्चुअली इसे समझते हैं। पहले सबसे पहले तो हमने किसी ने जो अमला जो नाम दिया हुआ है उसने इस घर को खरीदा है। ओके, शी हैज बॉट इट फॉर सम रुपीज, कुछ रुपए में उसने खरीदा होगा। देन उसने रीमॉडलिंग की है उसकी। रीमॉडलिंग मतलब उसने उसकी कुछ, जो अभी महेश ने बोला, मरम्मत वगैरह कुछ कराई उस घर की, और फिर उसे उसने सेल कर दिया। तो अब हमें जो दिया हुआ है कि उसने 60,000 रुपए की मरम्मत उसने करवाई, तो ये हमारे 60,000 रुपए यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस किसी चीज की क्या होती है, जो टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस जो लगता है उस चीज को बनाने में। तो एक तरीके से अगर हम ये देखें कि ये जो अमला है इसने इस घर को बनाने में कितना पैसा इसने लगाया टोटल। उसने एक तो क्या किया, उसे पहले खरीदा, फिर उसमें उसने रिमॉडलिंग करी, रिमॉडलिंग उसने की उसकी। तो जो इस बॉक्स में जो मैंने जो बंद किया हुआ है, बेसिकली एक तरीके से ये इस घर की कॉस्ट प्राइस हुई। आपने किसी चीज को खरीदा, फिर उसे सही किया, तो आपने उस घर में पैसा लगाया ना, एक तरीके से ये आपकी कॉस्ट प्राइस हुई। तो दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस, मतलब कि जितने में खरीदा और जो उसमें हमने कुछ पैसे लगाए रिमॉडलिंग। अब हमें दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस हमें 42 लाख रुपीज दी हुई है, रुपीज 42 lakhs हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है। और हमें यह बताया हुआ है कि अमला ने सोल्ड किया है हाउस को एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। जो इसे सेल किया है दैट इज डन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो अब अगर हम एक चीज देखें कि कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है इस घर की, दूसरा सेलिंग प्राइस हमें पता है 42 lakhs है, और प्रॉफिट हमें पता है 20%। तो हम जो हमारा सीपी वाला जो फॉर्मूला है हम उससे निकाल सकते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। जो हमने सीपी वाला फॉर्मूला अभी जो हमने ये लिखा है, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ नीचे। इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस होल हाउस विल बी हाउ मच। इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 42 lakhs,
42 lakhs को हम अगर उसमें लिखें तो कैसे करेंगे? 100,000 lakhs, 100,000 lakhs, 10 lakhs, 42 lakhs. So this will be 42 lakhs divided by 100 plus profit percent कितना दिया हुआ हमें? 20. So this is what you will get as the cost price. ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा? This will come out to be around 35 lakhs. अब हमें ये पता है कि this 35 lakhs रुपीज जो निकल के आया, this is the total price of the house, which includes, मतलब जो मैंने जो इधर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस सीपी, अगर इसके साथ में लिख दूं तो दिस कम्स आउट टू बी 35 lakhs. तो अब इसने घर कितने में खरीदा? घर कितने में खरीदा? अगर मैं 35 lakhs में से 60,000 रुपए माइनस कर देंगे अगर हम, तो बाकी बचा है रुपए, जो बाकी बचे जो रुपए होंगे, दैट विल बी द अमाउंट इन विच शी मस्ट हैव बॉट द हाउस. अगर मैं बाई प्राइस जितने में खरीदा उसे अगर मैं एक्स मान लेता हूं, तो एक्स प्लस 60,000 will be equal to 35 lakhs. इसमें से अगर आप x इक्वल टू लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 35 lakhs minus 60,000. So this will come out to be 34,000. तो ये आएगा आपका 34,40,400. तो इतने रुपए में उसने ये घर को खरीदा होगा.